everyone. My name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy. And today I have been asked to give a strategy or the proper method or the proper way of preparing for judicial services examination or any other examination related to the law field, right? So, since I have been preparing for a long time, I was an aspirant and I have given examination, civil services, UPSC also, and then state civil services also, and then judicial services examinations also. So there were some certain things that I came across that as a student I was troubled with. कई बार प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे लगता था कि ओके दिस इज नॉट वर्किंग, राइट, और वो प्रैक्टिकल चीज होती थी. सो आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज कि ओके अब नहीं हो पाया तो अब क्या करूँ, या ये मेथड, दिस मेथड इज नॉट वर्किंग फॉर मी, so should I try something else? And that experience that I have had over the years, that is what I'm about to share with you, right? So judicial services examination, right now, first thing about any judicial services examination, it can be DJS, the Delhi Judicial Services, or it can be the UP Judicial Services, or it can be the MP, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal, Punjab, Haryana. It can be anyone, JNK, or it can be Odisha, Maharashtra, Gujarat, anyone. First thing about any judicial services examination is the approach that you should have, right? The first thing is the approach, right? How do you approach the examination? Almost every examination, all of these, with the exception of, I think there are a few in Northeast who do not take the preliminary examination, but the examination will be in 3 stages, right? And as we know, it is preliminary, mains, and then there is the interview or the personality test, right? Interview or the personality test, right? So the preliminary examination, this is only of a qualifying nature, only of a qualifying nature. इसके marks add नहीं होते हो. The only thing the results will declare, are you qualified to give the mains, or are you not, or are you not qualified to give the mains examination. That is it. The mains examination, this will be the written or the subjective examination, right? The prelims examination, these are objective questions, or also known as MCQs, that is multiple choice questions, right? And the personality test or the interview, that is the final part where you will be called upon to give, you appear in front of the board and you will have to answer questions, but that is a very later part of the examination process. So first thing about judicial services examination is the approach, because there is a different requirement at each stage of the examination, right? Preliminary, because it is objective and MCQs, you don't need to go through it, all of them, all of the notes, you don't need to go through it. बहुत thoroughly नहीं जाना होता. Means it is a written or subjective one, so here you need to be a bit thorough. Now the personality test will depend upon the mains exam. How? Now let's start with the preliminary examination. देखो, any judicial services, right? The preliminary, this is the first stage. This is the preliminary examination. Before we go into a state specific examination, remember that this is the first requirement of this is you must be thorough with the Bail Act. First thing is be thorough with the Bail Act. Right? याद रखना that this is the first and the foremost requirement. You must be thorough with the Bail Act. You must go through the syllabus of the examination, any examination, and जो भी Bail Act, जो भी subjects हो, all of those Bail Acts must be with you whenever you are studying. एक भी उसमें से छोड़ना नहीं. You must be thorough with the syllabus and buy the Bail Acts and be thorough with the Bail Acts. एक section
एंड एक एक सब सेक्शन सब रूल चाहे जो भी हो. फर्स्ट थिंग, बी थॉरो विद द बेयर एक्ट. This is where the majority of the questions are going to come from, right? Bare Act. Second, previous year questions, right? Now, previous year questions, these are the best guide to make you aware of the fact that what kind of questions can you expect in the examination, right? देखो previous year questions जो है, you have to always, this is the first thing that you must do. This is the first stage and the best guide for the examination that you are about to appear is the previous year question, because the purpose of this whole entire process is that you must be able to answer the questions which will be asked in the examination, right? So पहला काम करो, previous year question लो, all of this, and at least let's say this is 2020, तो last 20 years में जितने भी examination हुए होंगे उस particular services से related, you must be thorough with all of them. So try to start the questions from 2002 and leading up to 2022, right? If you're going to appear in 2023, तो 2022 के सारे questions जो हैं वो तुम्हारे साथ होने चाहिए, and you must go through it, all of them. एक एक question पे जाना है तुम्हें, right? Not only for the purpose of seeing what kind of questions are asked, that is the one aspect, right? The other aspect is that you must, देखो syllabus का भी होना does not mean कि आपको पूरा subject पढ़ना है. No, does not mean. देखो previous year question जब आप करोगे, let's take contract for an example, right? Now we know that contract can be mainly divided into two parts, that is contract 1 and contract 2, right? Now when you go through the previous year question, what you need to do, you need to mark each and every question कि कौन से subject से ये है, right? First thing, so subject wise you have to mark them, ठीक है? Now once you have marked them कि ये कौन से subject का है, then you will be able to know which subject to prioritize, right? Once you have marked it, you will know which subject to prioritize. Now even if like let's say there are 100 questions and the total number of questions is 100 and you are getting 25 questions from contract, let's say, just this is an extreme example, but let's say कि ये है ऐसा, right? Now in contract, ठीक है, now contract is in this particular example, contract is going to be your main subject, right? Now even in contract you need to figure out कि contract में भी किस particular portion से ज्यादा questions आते हैं, right? contract 1 से ज्यादा आ रहे हैं या फिर पेलमेंट एजेंसी प्लेज वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? तो लेट्स से कि तुमने देखा कि आउट ऑफ 25, लेट्स से 15 क्वेश्चंस वर फ्रॉम बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी, राइट? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे इस एग्जामिनेशन के लिए, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you need to focus upon bailment, pledge and agency. Although this is not to be discounted, but priority should be given to this, right? अब देखो ये चीज which subject to prioritize, first thing, and what part of that subject, what part of the subject needs to be prioritized. So you need to figure this out कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड उस सब्जेक्ट के भी किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दीज विल बी द बेस्ट गाइड हाउ डू यू एक्चुअली स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, राइट? जैसे हम लोगों ने यहां कहा था, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिलेबस. सिलेबस के साथ हम लोगों को उन सारे की बेरक रखनी है. नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेयर लास्ट 20 ईयर्स के एटलीस्ट तुम्हें रखने होंगे अपने पास. एंड इसका पर्पस क्या है, यू नीड टू फिगर आउट विच सब्जेक्ट टू प्रायोरिटाइज. इवन इन द सिलेबस नॉट एवरी सब्जेक्ट इज गोइंग टू हैव द सेम वेटेज. नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? सम सब्जेक्ट्स विल हैव अ ग्रेटर वेटेज एंड सम सब्जेक्ट्स विल हैव अ लेसर वेटेज. एंड पहली चीज, दैट इज द फर्स्ट वन, व्हाट सब्जेक्ट टू प्रायोरिटाइज. इवन इफ
यू प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हैं 25 क्वेश्चंस, तुम्हें वहां पर ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर 25 सब्जेक्ट्स, सॉरी 25 क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में किस पोर्शन से आ रहे हैं वो भी तुम लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा. एंड वंस यू हैव फिगर्ड दिस आउट, I took one example of contract, but you have to do it for CPC, CRPC, evidence, IPC, contract, जितने भी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से लेकर के हमारे चाहे आर्बिट्रेशन हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सभी के लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा. एंड वंस यू हैव फिगर्ड आउट द प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड द प्रायोरिटी ऑफ द पार्ट इन द सब्जेक्ट दैट यू हैव टू फिगर इट आउट, यू आर नाउ रेडी टू स्टडी. अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, राइट? पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ने की जरूरत है. व्हाट वी नीड टू डू, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी नीड टू फोकस अपॉन दोज एरियाज, राइट? फर्स्ट थिंग, दिस इज टू फिगर आउट व्हाट टू स्टडी, राइट? जब हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया है व्हाट टू स्टडी, चलो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कहां फोकस करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू वी स्टडी इट फ्रॉम? it from, right? Okay, before we go to where do we study it from, याद रखना, I forgot to tell you कि ये जो हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि what area we need to focus, although this is good, but एक बात याद रखना कि कई बार in many examinations, not all, of course not all, but in many examinations what is going to happen is that questions will be repeated, right? Repeated questions भी होते हैं. Happened with me, I have figured it out कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. I don't know, ज्यादा नहीं होंगे, मे बी आउट ऑफ 100 ओनली 3 और 4, राइट? मैक्सिमम हो सकते हैं. ओके, अगर मान लो 150 क्वेश्चंस है तो देयर कैन बी लेट्स से 5, 8 और 10 मैक्सिमम, राइट? बट याद रखना कि ऑल्दो दैट इज ओनली 2 और 3, राइट, बट स्टिल एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड कर सकता है. ठीक है, सो डोंट टेक इट लाइटली. आपको ये सब्जेक्ट फिगर आउट करने में और एरिया फिगर आउट करने में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही आपको ये भी बताएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, या ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आ चुका है, या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं. सो दैट इज अबाउट व्हाट टू स्टडी. तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द बेस्ट गाइड. सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, इसलिए भी कि ये देख लो कि यहां से कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हमारे सामने आ सकते हैं, और वो आप एक्चुअली याद भी कर सकते हो. यू कैन जस्ट मेमोराइज देम इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डिटेल्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, वेयर डू वी स्टडी इट फ्रॉम? कहां से पढ़ना है? देखो, फॉर प्रीलिम्स द बेस मस्ट ऑलवेज बी बेयर एक्ट. ऑलवेज यू शुड स्टार्ट विद द बेयर एक्ट. एंड एग्जामिनेशन के ऑलमोस्ट 20 डेज पहले ओनली बेयर एक्ट, राइट? अपनी बेयर एक्ट में ही फोकस रखना. बेयर एक्ट, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, ट्राई टू फोकस ऑन sections and then try to underline the keywords, और जो keywords easy होते हैं, key phrases actually, यहां पर key phrases, राइट? कीवर्ड्स और की फ्रेजेस हम लोगों को वहां पर अंडरलाइन करके रखा करो. बिकॉज देखो, व्हेन यू आर स्टडीइंग, इस तरह पढ़ना कि जब एग्जामिनेशन आए एंड 20 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन आई हैव टू स्टडी दिस, तो मैं क्या पूरा सेक्शन पढ़ूं या ओनली द कीवर्ड्स और द की फ्रेजेस विल बी सफिशिएंट, राइट? सो जब बेयर एक्ट अपनी पढ़ना, वहां पर सेक्शंस में कीवर्ड्स या की फ्रेजेस अपने मार्क करना. जितने भी नोट्स अपने बेयर एक्ट में बना सकते हो उतने बना लेना, बट दैट डज नॉट मीन कि सारा कुछ बेयर एक्ट पर ही लिख दिया. नहीं, ऐसा नहीं. योर बेयर एक्ट मस्ट बी लेजिबल. आप इतना कि पढ़ सको एग्जामिनेशन टाइम के ठीक पहले. यू डोंट नीड टू पैनिक, इस तरह से करना, राइट? सो बेयर एक्ट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, राइट? इसके अलावा यू कैन बाय एनी क्वेश्चन बैंक, राइट? Now there are n number of these available in the market, and we at Paujal Law Academy we also provide question banks with respect to each and every subject, right? Like for CPC there is, for CRPC there is, for evidence there is, ऐसा हो सकता है. But you need, देखो previous year question में you figured out कि किस तरह के question आएंगे, right? But you also need to practice new questions. Now new questions are really going to open your mind, ठीक है?
अब देखो न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, ताकि डिस्कशन होगा फ्रेंड से और आप अपने टीचर से डिस्कस करोगे तो वहां पर आपको कई सारी चीजें वो सफिशिएंट मिल सकती हैं। लेकिन याद रखना क्वेश्चन बैंक नॉट वेरी रिलायबल, ऑल्दो कि मैं कहता हूं प्रैक्टिस करना, बट नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज द क्वेश्चन बैंक्स ऑफन दे गिव द रॉन्ग आंसर्स। तो वहां पर कई बार क्लैरिटी की बजाय कंफ्यूजन ही क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट, बट प्लीज डू इट, करते रहना, ऐसा मत करना कि छोड़ ही देना इसे। नाउ इसके बाद जो क्लास में बुलेट नोट्स मिलते हैं, याद रखना दीज आर द बुलेट नोट्स इन पाउजा लॉ एकेडमी, यू आर गोइंग टू फाइंड द बुलेट नोट्स, राइट। अब देखो बुलेट नोट्स के साथ आपको एक एंड में बुकलेट मिलती है, नॉट इन द एंड व्हेन यू कैन आस्क व्हेन द सब्जेक्ट इज गोइंग ऑन। फॉर प्रीलिम्स बुलेट नोट सफिशिएंट होते हैं आपके। याद रखना कि जो आपकी बेयर एक्ट है और जो बुलेट नोट्स हैं, these are sufficient for prelims, more than enough. In fact कुछ सब्जेक्ट्स के बुलेट नोट्स तो ऐसे that can also be helpful for the mains examination, right? हो सकते हैं। बुकलेट I will say only for mains, use it only for mains, right? एंड बुलेट नोट्स में भी जो काम हम लोगों ने बेयर एक्ट में किया था, यू हैड मार्क्ड इट, आपने अंडरलाइन कर रखा था या हाईलाइट कर रखा था, वैसे ही बुलेट नोट्स में भी मार्क इट एंड हाईलाइट इट, तो आप वो भी कर लेना। सो देखो प्रीलिम्स के लिए देयर मस्ट बी 3 मेन सोर्सेज। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, वहां पर आपको फिगर आउट हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए आपका, दैट इज द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ all the questions in the prelims examination. prelims में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े एनालिटिकल हो सकते हैं, बट इट कैन बी ट्विस्टेड, थोड़ा ट्विस्टेड हो सकता है। तो बेयर एक्ट से अगर आप थरो हो, हाफ ऑफ द जॉब इज डन व्हेन यू आर थरो विद द बेयर एक्ट। एनी गैप इन द बेयर एक्ट कैन बी फुलफिल्ड बाय बुलेट नोट्स, और इफ यू हैव मेड अ रजिस्टर, अपने हैंड नोट्स रखे हैं रजिस्टर में, दे कैन ऑल्सो बी सफिशिएंट, राइट। बट दिस रियली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि मान लो कि टीचर ने कुछ लिखवाया है या टीचर ने कुछ बोला था और स्टूडेंट ने एक्चुअली लिख दिया है उसे अपने रजिस्टर में, दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो आपने अगर अपने रजिस्टर या ओन नोट्स अपने बनाए हैं, दैट कैन ऑल्सो बी सफिशिएंट, राइट। तो प्रीलिम्स के लिए देयर आर 3 मेन सोर्सेज, वन इज द बुलेट नोट्स, सॉरी वन इज द बेयर एक्ट, द सेकंड इज द बुलेट नोट्स, एंड द थर्ड वन, although not the third, that was the first, that is supposed to be the first one, which is the previous year questions. एंड कीप प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन बैंक में न्यू क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते रहना। कीप प्रैक्टिसिंग दी एमसीक्यूज। यू कैन टेक एनीवन फ्रॉम द मार्केट, इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट एट पाउजा लॉ एकेडमी, यू कैन बाय एनीवन, कहीं से भी आपको देखो सिंगल्स की मिल सकती है, परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज do all these steps: previous year question, bear act and bullet notes, or your register notes for prelims, right? Now that is for the prelims. Now the second stage is mains, right? The second stage is the mains examination, right? अब देखो prelims में we saw कि हमारा objective questions होते हैं और multiple choice questions होते हैं, right? Now in mains examination, this is going to be a written or a subjective type test. Written or subjective test, right? Now, देखो, the first thing about mains is this is the most important stage, right? याद रखना, mains can decide your selection or rejection, right? I will give you one example because this happened with me in 2018 when I was giving my judicial census examination paper, right? In that, the number 1 ranked student, I don't know her name, I don't remember her name, she scored 615 in the written examination and she scored 70 in the interview, right? Her total marks was 685, and the final cutoff, including the interview, was 560. This was the final cutoff. Mains plus interview. Fine. This was mains plus interview. याद रखना that she could have made the list even if she got 0 in the interview.
अगर उसे इंटरव्यू में 0 भी मिलता तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता, बिकॉज शी वॉज वे अबव द कट ऑफ, राइट. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस. मेंस ही आपका सिलेक्शन करा सकता है. बट हैविंग सेड दैट, याद रखना, some states like Bihar, what they do, they have to you have to qualify for a minimum number of marks. Like in Bihar, the interview is for, as far as I remember, 100 marks, and in that you have to score at least 35. That is the minimum marks to be selected. So कुछ states में है ऐसा that there are minimum marks for the interview, but कुछ states में नहीं भी है. But even then, most important stage is always going to be main, because देखो interview कितने marks का है, 100 marks maximum. It can be 70, it can be 50. Like Assam has 50, like Manipur has 70, and like UP has 100. It can be anything, but याद रखना, mains is far more important than interview. मेंस ही बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. जस्ट बिकॉज यू आर गुड इन द इंटरव्यू डज नॉट मीन कि आपके मेंस में अच्छे मार्क्स हैं. नहीं, सिलेक्शन विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, ऑलवेज मेंस. सो मेंस इज द फोकस ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टफेस्ट. इफ यू डोंट नो द प्रॉपर वे, इट कैन बी द टफेस्ट. हाउ कैन इट बी मेड इजी, राइट. फर्स्ट थिंग, देखो मेंस एग्जामिनेशन में जो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, राइट, उसके लिए वी डू द सेम थिंग, वी गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के देखो. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. आर द क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड, or are the questions analytical? Like in Delhi, you are going to get questions which are analytical, or this is also called as application based questions, right. Delhi में होगा, जैसे like Rajasthan and MP have judgment writing, right. तो उस टाइप के questions से straight forward or theoretical questions. जैसे UP will have a majority of questions as theoretical questions. MP also, with the exception of judgment writing, it can be it is a theoretical paper. सब कुछ वहां पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, कभी बहुत ट्विस्टेड नहीं आता, तो वहां पर भी theoretical ही होते हैं. ओनली सम क्वेश्चंस आर एनालिटिकल, बट DGS में ऐसा नहीं है. DGS में देयर इज अ राइट बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड theoretical बेस्ड क्वेश्चंस. सो यू नीड टू फिगर आउट कि पहले मुझे ये देखना है कि theoretical है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड है, राइट. फर्स्ट थिंग, अगर theoretical है, यहां पर यू कैन go for mugging it up, right. आप याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, but mugging up alone is not going to do it. You can memorize the answer, but mugging up alone is not going to do it. यहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, राइट. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेली करो. डेली एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एटलीस्ट लिखो. Now the application based question, these are a bit troublesome. कई लोगों को प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में. नाउ जब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना होता है, देखो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, राइट. थियोरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत सिंपल है. देयर विल बी an introduction, there will be a main body, and in the end there will be conclusions and if possible suggestions. But याद रखना कि ये चीजें लिखनी नहीं है. मतलब इंट्रोडक्शन लिख करके and then go on to write the introduction and then you write main body and then conclusion suggestion. Only conclusion can be written. end में आप conclusion लिख करके and then write the conclusion, that can happen. but ये दोनों तो कभी मत लिखना. theoretical question का वैसा ही जरूर हमारा ट्रेडिशनल वे होता है. That is the way. Application based question पे the approach is also a 3-step approach. Application based question, ठीक है. 3-step approach है यहां पर भी, but थोड़ा different है. First, in the application based question, the first thing you should explain the legal maxim or explain the legal provision in the question. जब भी क्वेश्चन में लीगल प्रोविजन आए, सबसे पहले उसे एक्सप्लेन कर, राइट. सेकेंड,
whatever the facts have been given in the case, you need to illustrate कि how does the law apply upon those facts. इन facts पर law कैसे apply होता है, जो तुमने ऊपर legal provision explain किया है, how is this applicable to these set of facts, how is this particular law applicable to these set of facts. Now once you have done 1 and 2, then comes your third, that is the answer. And the answer will be a quick one because you have already explained the law and you have already explained the how the law applies upon those facts. And then the decision is here. This is mainly the decision, like let's say, will the review petition be allowed, right? So in the end you can write that the review petition is liable to be allowed, right? Or if your answer is no, you can say that the review petition is liable to be rejected, right? So दोनों तरीकों में हम लोगों ने देखा there is a 3 step. यहाँ पर भी हमारा 3 step ही है, right? यहाँ पर भी 3 step है, but they are quite different from each other. यहाँ पर भी क्या करना हम लोगों को, explain the legal provision first, then ये दिखाओ कि इस इन facts पर law कैसे apply होता है, and then finally your answer must be there where the decision must be given कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, right? अब देखो, these are the approach to the questions that have been asked in the examination, previous year question, right? यहां तो तुम्हें देख लेना है कि अच्छा इस 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और मुझे ये इसके लिए रेडी रहना है. अब देखो इसका सोर्स क्या होना चाहिए. देखो सोर्स को जानने से पहले एक बात ये जानो कि in almost every exam there will be, almost every, as far as I know, that 3 hours की limitation is going to be there, right? मेंस का पेपर है, 3 hours की लिमिटेशन होगी. एंड इन 3 hours याद रखना, 3 hours is not a lot of time. When you are writing the examination in mains examination, 3 hours का टाइम ऐसे निकलेगा पता नहीं चलता, राइट? सो यू ऑलवेज नीड टू बी अवेयर कि मेरे पास 3 hours की लिमिटेशन है. दैट इज वाई किसी एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना. योर फर्स्ट जॉब, yeah, your first task is to finish the paper. याद रखना, finish the paper. And you cannot finish the paper if you are giving too much attention to one question. Yeah, right? So याद रखो कि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं लिखना, आपको हर एक क्वेश्चन एवरेज या अबव एवरेज लिखना है. That is going to help you. Not कि you are going कि 5 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से लिख दिए बट 6 क्वेश्चन तुमने बिलो एवरेज लिखे. नहीं, ऐसा नहीं करना. हर एक क्वेश्चन को एवरेज या अबव एवरेज लेके चलना, ठीक है? इवन जिस स्टूडेंट का मैंने बताया था अभी कि शी स्कोर्ड 615, देखो शी वाज रैंक नंबर 1, 615 भी उसके आउट ऑफ 1000 आए थे. तो शी स्कोर्ड 61.5%. शी वाज वेरी गुड एंड शी स्कोर्ड 61.5%. तो टॉपर के मार्क्स भी 60% ही होते हैं. तो देखो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ 10 उसे 6 ही मिले हैं. अगर देखा जाए आउट ऑफ 10 इसे किया जाए तो उसे 6 ही मिले हैं. एंड दैट इज एवरेज मार्क्स, याद रखना. इसीलिए तुम्हें एक क्वेश्चन के पीछे कभी मत पड़ना, तुम्हें हर एक क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देना है. एंड यू नीड टू स्कोर एवरेज और अबव एवरेज मार्क्स इन ईच क्वेश्चन, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू फिनिश द पेपर. हर एक क्वेश्चन मस्ट बी अटेंडेड, ईच एंड एवरी क्वेश्चन. डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग. नाउ सोर्स, राइट? अब देखो सोर्स में हमारे पास ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी द बेयर एक्ट एंड द बुलेट नोट्स. आई वुड से बुलेट नोट्स पर यहां पर ज्यादा रिलायंस देना, नॉट अपॉन द बेयर एक्ट. बेयर एक्ट पर उतनी रिलायंस मत देना, बिकॉज इन मेनी स्टेट्स लाइक दिल्ली और हरियाणा, कई जगह क्या होगा, आपको बेयर एक्ट दे दी जाती है मेंस के एग्जाम में, एंड इट इज नॉट द बेयर एक्ट दैट वी ऑफन यूज. जैसे यूनिवर्सल की बेयर एक्ट वगैरह हम लोग यूज करते हैं विद कमेंट्स. इट इज नॉट दैट बेयर एक्ट. वहां पर जो बेयर एक्ट होती है दैट इज अ प्लेन वन विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? ये वाली बेयर एक्ट नहीं होती जो हम लोग यूज करते हैं. सो बेयर एक्ट अगर आपको एग्जाम में दे दी गई है एंड यू स्टार्ट कोटिंग फ्रॉम द बेयर एक्ट, फर्स्ट थिंग इट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू हैव टू फ्लिप द बेयर एक्ट एंड यू हैव टू एक्चुअली कॉपी इट. That wastes time. And second, if you are just copying it, the examiner knows कि you are copying it, right? तो वो वहां पर आपको मार्क्स नहीं देगा. तो बेयर एक्ट पर रिलायंस की जरूरत नहीं है. You can quote some keywords और की phrases जहां पर appropriate लगे और necessary लगे, but बेयर एक्ट पर वहां पर रिलाई बहुत ज्यादा नहीं करना.
यहां पर काम आएंगे तुम्हारे बुलेट नोट्स, प्लस अगर तुमने कोई रजिस्टर मेंटेन किया है फॉर द क्लास नोट्स, दैट वन, एंड लास्टली द बुकलेट दैट यू आर प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, बुकलेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बुकलेट को भी देखना पड़ेगा वहां पर। दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन एक्सपैंडिंग इट। जो नॉलेज यहां पर है बुलेट नोट्स में, वही चीज बुकलेट में थोड़ा और इलाबोरेट वे में दी हुई है, राइट? बिकॉज इन मेंस एग्जामिनेशन इट इज पॉसिबल कि तुम वहां पर 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिख पा रहे हो, बट व्हाट हैपेंस इज वहां पर वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ गया या 20 मार्क्स का आ गया। सो हाउ डू यू एक्चुअली एक्सपैंड इट, कैसे करोगे? that can be dealt by reading the booklet that is going to be provided to you by the institute, right? अब देखो बुकलेट में याद रखना कि जब भी आंसर वगैरह लिखना, राइट, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स, और बेरैक की लैंग्वेज को कम से कम यूज करो, और जहां भी यूज करो इट शुड बी इन कोट्स फॉलोड बाय द, sorry, in the beginning there must be ellipses and even in the end there must be ellipses, but try to use as much as your own language, right? Try to memorize the case law को underline करना सीखो, और कलर जो होगा that should only be blue and black, वहां पर कभी भी रेड या ग्रीन मत यूज करना, ब्लू एंड ब्लैक ही करना, उसके अलावा कुछ मत करना। देखो आई एम सेइंग दिस अगेन कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहे तुम्हें कितने भी अच्छे से आता हो, डोंट गो आफ्टर दैट क्वेश्चन, बिकॉज एज यू सॉ कि टॉपर के मार्क्स भी कितने होते हैं, 60% ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते उसके मार्क्स, राइट? जो रैंक 1 होता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ओनली बी एवरेज इन दोस। तो एक क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ना कि बहुत अच्छे से लिख दिया, कि ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। यू नीड टू अंडरलाइन द मेन पार्ट्स, right? And you need to also highlight the question, the case law, right? And देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि मैंने यहां बोला था, फिनिश द पेपर, इसलिए अपनी स्पीड बना के रखना, अपनी स्पीड को बना के रखना, ठीक है? दिस मैटर्स अ लॉट। अब देखो एक चीज याद रखना कि जितने भी क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टॉपिक्स, 3 काइंड्स। वन वुड बी जहां पर कि आपको 300 to 350 वर्ड्स लिखने पड़ सकते हैं। दूसरा जहां पर आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखने पड़ सकते हैं। एंड थर्ड वुड बी 600 वर्ड्स, ठीक है? यहां पर हो सकता है। देखो जनरली यहां पर रहता है 10 मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, ठीक है? ये 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। दिस इज 20 मार्क्स एंड दिस इज लाइक 5 और 10, इनके बीच में रह सकता है, ठीक है? अब देखो याद रखो कि तुम अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, लेट्स से इन्वेस्टिगेशन से लिख रहे हो, राइट? इन्वेस्टिगेशन पे एक 600 वर्ड्स का आंसर लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली अब 6000 वर्ड्स का भी लिखा जा सकता है। इट्स नॉट इन्वेस्टिगेशन इन सीआरपीसी, इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, और आप बहुत कुछ लिख सकते हो वहां पर। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको 600 वर्ड का लिखना है, प्रॉब्लम ये है कि वही 20 मार्क्स का आंसर अगर वो 15 या 10 मार्क्स में आ जाए और आपको 300 to 350 वर्ड्स में लिखना पड़े, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? कैसे करोगे? या वही चीज 100 and 150 वर्ड्स में आ गई तो आप क्या करोगे? To avoid this situation, what I used to do कि मैं हर एक टॉपिक को 300 to 350 वर्ड्स में कंपैक्ट रखना चाहता था। मैं एवरी टॉपिक के लिए I used to prepare an answer of 300 to 350 words. Why? This I used to refer it as my happy medium. Right? Happy medium का मतलब कि देखो अगर यही क्वेश्चन 600 वर्ड्स में आ जाता है, I know how to expand it, ठीक है? I have read it many times and I know how to expand it. और अगर यही क्वेश्चन अगर 5 या 10 मार्क्स में आता है तो मुझे ये भी पता है कि इसे कॉम्पैक्ट कैसे करना है, राइट? दिस इज द सॉलिड क्रक्स एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज एन हैप्पी मीडियम। कई बार ऐसा होगा कि आपने इतने का पढ़ रखा है एंड नाउ यू नीड टू समराइज इट इन 100 and 150 वर्ड्स, एंड बिलीव मी
that is not an easy job to do, especially when you are sitting in the examination under that pressure where you can see everyone else is writing very fast. और उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन लगने लगती है, because you know the answer, all you need to do is summarize it, and it is not an easy thing to do. अगर आपको ये है, आपको वो 1/6 करके लाना है. It's not something you can just come up in the examination. नहीं, ऐसा नहीं होगा. Take it from me, I am speaking from experience. यहां पर आपको क्या करना होगा, इसीलिए इस हैप्पी मीडियम पे ध्यान दो 300 वर्ड्स पे. When you have prepared the answer for this midway, आपको एक्सपैंड करना भी आएगा और आपको इसे कॉन्ट्रैक्ट करना भी बहुत इजी रहेगा वहां पर. ठीक है. सो इन द मेंस एग्जामिनेशन माय फाइनल थिंग वुड बी कि देखो, बहुत ज्यादा पढ़ने के ऊपर मत जाना, बिकॉज बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है. यू नीड टू प्रिपेयर एन आंसर ऑफ 300 to 350 वर्ड्स. जो भी मेन टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमने किए होंगे तो तुम्हें वहां पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, राइट. आपको दिख जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो जो रिपीटेड टॉपिक्स है या जो रिपीटेड एरियाज है, वहां से तुम ले करके उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो या उन पर नोट्स बना सकते हो, राइट. कि मैं ऐसा नोट्स बना लूँ. और ट्राई टू मेंटेन अ रजिस्टर जिसमें कि तुम्हारे सारे आंसर्स एक जगह हो, क्योंकि मेंस की ठीक पहले ना वो बहुत अच्छे नोट्स भी बन जाते हैं आपके कि हाँ ये मैं फ्लिप कर लूँ, मुझे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट डू इट फॉर 300 to 350 वर्ड्स. और ये चीज अगर आप कर लोगे, यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन टू एक्सपैंड इट एंड ऑल्सो टू कॉन्ट्रैक्ट इट. ठीक है. सो दैट इज फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस. एंड देखो, आंसर राइटिंग में एक चीज याद रखना, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू. मे बी आपको नॉलेज हो, बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग, दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू रियलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू हैव बीन थ्रू. कई बार ऐसा होगा कि यू नो इट, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, आप समझा भी सकते हो, बट एज सुन एज यू स्टार्ट राइटिंग, वहां पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओके ये ठीक से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ या मैं लिख नहीं पा रही हूँ. एंड दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस. एक बार आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो एंड गेट इट चेक थ्रू योर टीचर. जो भी आपका टीचर हो उसे चेक करा लो एंड ट्राई टू मेंटेन अ रजिस्टर. अपने रजिस्टर में देखते रहना कि वो कैसा होगा और कैसा नहीं होगा. ठीक है, कैसा अच्छा है कैसा नहीं होगा. और बहुत ज्यादा लिखने के पीछे भी मत जाना. इफ समबडी एडवाइजेस यू कि एक आंसर जो है वो 8 पेज का लिख लो, बेटा 8 पेज का अगर आप लिख भी लोगे, एग्जामिनेशन में आपको इतनी स्पेस नहीं मिलेगी या इतना टाइम नहीं मिलेगा. तो अगर मान लो स्पेस की भी लिमिटेशन नहीं होती है, तो आपके पास टाइम की लिमिटेशन जरूर होगी. अगर आप एक एक आंसर पे 8-8 पेज लिखने जा रहे हो, दिस इज नॉट अ कॉलेज एग्जाम वेयर यू आर सपोज्ड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू नो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. You have to write the main points and the main crux of the answer. वहां पर you have to be very precise about what you write. And how are you going to write the precise things? That is only by repeated revisions. आपको बार बार रिविजन करना होगा. बार बार रिविजन करने के बाद ही आप ये आंसर ऐसा लिख पाओगे. और जब बार बार रिविजन होगा आपका, तभी आपके लिए ये कन्वीनियंट भी रहेगा आंसर राइटिंग. अगर बार बार रिविजन करोगे तो आंसर राइटिंग बहुत इजी लगेगी. अगर बार बार रिवीजन नहीं करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ. और बहुत ज्यादा पीछे मत पढ़ना कि ये भी बुक पढ़ लूंगा या ये भी बुक पढ़ लूंगा. नो, डोंट डू दैट. आई हैव डन इट एंड आई हैव रिग्रेटेड इट. मैंने बहुत रिग्रेट किया कि मैंने इतनी सारी बुक्स क्यों पढ़ ली. कम पढ़ो, बार बार पढ़ो. यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. इसीलिए आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट. एंड मेंस की इंपॉर्टेंस मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दी है कि दिस स्टूडेंट, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट उसके मेंस पर ही उसका सिलेक्शन हो जाता है. अगर उसके इंटरव्यू में 0 भी आते, बिकॉज यू नो द कट ऑफ वाज 560 और उसके रिटन एग्जामिनेशन में 615 थे, राइट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस. एंड देन फॉर द थर्ड स्टेज, विच इज द इंटरव्यू और द पर्सनालिटी टेस्ट, राइट. नाउ फॉर दिस there cannot be a way of preparation, right. आप इसके लिए पढ़ नहीं सकते. पढ़ने के लिए जो सोर्स मटेरियल होगा वो तो प्रीलिम्स और मेंस वाला ही होगा. बट फॉर इंटरव्यू और द पर्सनालिटी टेस्ट, गिव एज मेनी मॉक इंटरव्यूज एज यू कैन. जितने भी मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो उतने दो. We at Pahuja Law Academy we do conduct mock interviews as and when the result comes. जब भी मेंस का एग्जाम होता है
तो हम लोग मॉक इंटरव्यूज कराते हैं, एंड देयर द पैनलिस्ट actually help the students ki what kind of questions can be asked and how to respond to those questions, what should be the general etiquette that you should follow in in an interview session, and all kinds of experience ki kahan problem aa rahi hai, kaise feedback dena, all of those. So देखो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए देयर कैन नॉट बी अ प्रिपरेशन पर से, ऐसे प्रिपरेशन नहीं हो सकती. ये प्रिपरेशन हो सकती है जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाए, तो देन ट्राई टू गिव एज मेनी मॉक इंटरव्यूज एज यू कैन. Right? So these are the 3 stages of the preparation, right? And as we said in the beginning, I said कि देखो 3 stages होती है. There is the preliminary examination and the mains examination and the interview, right? So for any kind of examination, these are the 3 stages that you need to do. हर एक stage, each and every stage is going to demand a different kind of approach. Prelims mein it is going to be the Bayer Act and the bullet notes, that is it. And the mains examination, Bayer Act, bullet notes, as well as the booklet that you are going to receive from the coaching institute. And then in the interview we conduct mock interviews. That is going to be helpful for you. Keep revising. याद रखना, एक बार पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है. Everybody does it. The difference is in revision. जितनी बार रिवाइज करोगे, and I cannot stress this enough, revision is the most important thing. अगर आपने एक बार पढ़ लिया कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आप उसे बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, you are not helping yourself. ठीक है, चलो, that will be it, and please I hope my lecture was helpful. Thank you everyone. This is Anurag Singh.